ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ YouTube ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਈਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 0172410255 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਝ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਜਾ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ, ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹੋ? मैम टीचिंग लाइन में तो ये कोरोना के टाइम से ही बदलाव काफी आ गया। हमारे सारा जो बच्चों को पढ़ाना है वो सारा ऑनलाइन टीचिंग के साथ हुआ। बहुत एप्स इंट्रोड्यूस हो गए जिसमें आप वर्चुअल टीचर्स को देख सकते हो कि वो पढ़ा रहे हैं, एप्स पढ़ा रहे हैं, रोबोट पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में हमें रेडीमेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, यूट्यूब पे हमें लेक्चर्स पड़े हुए मिलते हैं जिसमें हमें लगता है कि टीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको टेक्नोलॉजी ने ओवर पार कर लिया। लेकिन जो ये टीचर के साथ कनेक्शन है, बॉन्डिंग है, एक इफेक्शन है जो ऑफलाइन क्लास में बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, उनके जो डाउट्स हैं, जो टीचर के साथ एक रिलेशन बनता है, वो चीज मिसिंग है। वो आप इन एप्स और इन टेक्नोलॉजी को टीचर्स के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते जब तक आपकी 1-to-1 एक के बाद यह पेरेंट बच्चों की केमिस्ट्री बॉन्डिंग मिसिंग है जो टेक्नोलॉजी नहीं ले सकती। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੌਂਡਿੰਗ ਤਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਟੀਚਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ 90s ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਓ, ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? मैम कारण तो इसके देखो बहुत है। पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, वो उनकी एक्सपेक्टेशंस है बेसिकली कि एक स्कूल से अगर वो पे कर रहे हैं तो उनकी एक एक्सपेक्टेशंस है कि उनको बच्चों के साथ उनकी केमिस्ट्री रहे और उनको अच्छे से वो पढ़ाएं। और अगर हम थोड़ा सा भी, क्योंकि टीचर एक इस तरह सा रिलेशन है, एक सेकंड मदर की तरह उनके स्कूल में है और उनको गाइड करती है, तो हम बच्चों को अपनापन समझ के उनको अपनी नेशन बिल्डर्स की तरह उनको देखते हैं। तो हम जो उनको सिखाना चाहते हैं, कई बार पेरेंट्स आके ये कहते हैं कि उसको कहना कुछ नहीं है, पैम्पर रखा हुआ है। इसका फर्क ये है क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी में पहले जो बच्चे थे वो आपकी फैमिलीज में इतने थे कि चलो आप उनको इक्वली कर लेते थे। अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, एक एक दो दो बच्चे हैं, उनको बहुत पैम्पर करके रखा जाता है और ये कहा जाता है कि उनको कुछ कहना नहीं है, अगर कुछ आता है तो
वो कह रहे हैं उनको घर में से रखा हुआ है। हम्म। तो यहाँ और हमें कहते हैं कि आगे के मीडिया है, हम मीडिया आएंगे, कहीं ना कहीं टीचर्स को थ्रेटन किया जाता है, हम्म। जो कि मुझे लगता है कि गलत है, क्योंकि अगर हम बच्चों की भलाई के लिए ही यहाँ पे बैठे हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे। उन्होंने बिल्कुल। इस डे को ये रिकॉग्निशन दी थी, क्योंकि टीचर्स बच्चों को गाइड करने के लिए होते हैं, उनके फ्यूचर को बनाने के लिए होते हैं, ना जी। कि उनको थ्रेटन करने के लिए, ना उनके फ्यूचर के साथ कुछ खेल करने के लिए। ये बहुत जरूरी है, एक समझना चाहिए मीडिया को, पेरेंट्स को, कि हम यहाँ पे उनके भले के लिए उनके साथ हम्म। ट्रीट करते हैं, ना कि कुछ गलत करने के लिए। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਵੀ हाँ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ जी, ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल होता है मैम, क्योंकि जैसे जैसे अब हम उनको पढ़ाते हैं, न्यू न्यू एजुकेशन पॉलिसीज जब इंट्रोड्यूस होती हैं, एक हमारे लिए भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, तो न्यू चीजों के साथ अपडेट रखें और उनको पढ़ाएं। और हम्म। उस प्रेशर के साथ, क्योंकि हमारे सिर्फ एजुकेशन में ही हमारा सिर्फ रोल नहीं है, हमारी जो सरकार है वो हमें डिफरेंट ड्यूटीज असाइन कर देती हैं, जबकि बेसिकली हमें पूरी कंसंट्रेशन चाहिए हमारी एजुकेशन को लेके। एजुकेशन। लेकिन टीचर्स की जब सेंसेस को लेके जब कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज दे दी जाती हैं, तो वो उनका जो काम है वो प्रेशर इतना हो जाता है कि ना तो वो अपनी प्रोफेशन को जस्टिफाई कर पाते हैं, और एक्स्ट्रा ड्यूटीज की तरफ जब उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है तो वो उतना नहीं दे पाते हैं। तो हमारे हम्म। ऊपर सिलेबस कंप्लीशन का, नई चीजों का, सरकार की तरफ से दी हुई ड्यूटीज का, ये सारा इतना प्रेशर हो हम्म। जाता है कि हम वो नहीं। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਮ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੜਾਉਣ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਅਪਡੇਟ ਡੇਟਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਆਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਟਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ बहुत ਕੀਤੀ पेपर ਕੀਤੀ वर्क ਜਾਏ, हो जाता है। ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਟੀਚਰਸ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਣ ਪਾਸ ਹੈ ਕੌਣ ਫੇਲ ਹੈ ਇਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰਸ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? मैम देखो, डिफरेंस ये है कि प्राइवेट स्कूल्स में अगर पेरेंट्स पे कर रहे हैं तो वो थोड़ा आके ये भी डिमांड रखते हैं कि हमें पूरा चीजें, जैसे कि वो पे कर रहे हैं उनको सारी फैसिलिटी में भी, जैसे दिल्ली में देखा है कि हमने देखा कि स्कूल का वो बहुत उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया है, अपडेट हम्म। किया है सिस्टम। गवर्नमेंट्स के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ना चाहे, भी कैलिबर है, पहले भी उन्हीं में से बच्चे आईएएस बन के आईपीएस निकलते थे, कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे नहीं है, हम्म। बस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर उनका ठीक नहीं है, उनकी जो फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिल पाती है, हम्म। जो एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल्स में दी जाती है। बिकॉज यहाँ पे जब वो पे करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा अपडेट रहता है। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। मैम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स अपने स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए कुछ फैसिलिटीज हैं, जैसे आप यही देख लो कि कोरोना काल में हमें सिस्टम की या गवर्नमेंट की तरफ से क्या कोई गैजेट्स, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, इंटरनेट हम्म। कनेक्शंस, ये कुछ नहीं प्रोवाइड किया गया, ये सब हमने अपनी पॉकेट से पे किया है। और हम्म। हमें फील नहीं हुआ, क्योंकि हमें सिर्फ ये था कि जो बच्चों का टाइम है वो वेस्ट ना हो, और हम उनको चाहे अपने में से पे करके देना पड़ रहा है, लेकिन उनको वो फैसिलिटी दें जो उनकी राइट है देना। तो हमें कभी ये बुरा भी नहीं लगा कि हमने ये किया, ना हमने डिमांड रखी कि हमें इसका पे किया जाए। हमने अपने हम्म। मोबाइल्स, अपने इंटरनेट बिल्स, वाईफाई कनेक्शंस, ये सब खुद ही तो लगा के घरों में और स्कूलों में लगा के ये बच्चों को हमने ऑनलाइन टीचिंग दी है। हम्म।
ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਐਕਸਟਰਾ ਹਾਂਜੀ। ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵੇਜਸ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰੱਖਦੇ हैं कि ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? मैम, वेजेस की आपने बात की है, बहुत अच्छा पॉइंट रखा है आपने। वेजेस के लिए तो आप ये देखो कि टीचर्स को तो उनकी पूरी सैलरी नहीं मिल रही है, तो ये जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज हैं इसके वेजेस की तो बात ही आप छोड़ दो। आपने अभी देखा होगा पंजाब में हर जगह पे टीचर्स अपनी 6 पे कमीशन के लिए सड़कों पे इतना एजिटेट कर रहे थे, वो अपने सैलरी के रिलेटेड ही तो बात कर रहे थे। और अगर वही उनको नहीं मिल पा रही है तो एक्स्ट्रा तो हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं सरकार से। और अगर अपनी राइट की बात करने के लिए भी हमें जो हम नेशन बिल्डर्स हैं, हमें अपने राइट की लड़कों को आना पड़ता है, और उसके बाद हमें टीचर्स को बाल पकड़ के खींच के उनको जेल में डाल दिया जाता है, लाठी खानी पड़ती है। हम तो अपनी उसी सैलरी की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ एक्स्ट्रा तो कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल। एक्स्ट्रा की तो ये जो कॉम्पनसेशन हैं, ये नहीं चाहिए हमें। आप सिर्फ हमें पढ़ाने के लिए वो दे दें, और हमारा जो राइट है हमें वही मिल जाए, वही बहुत है हमारे लिए। और हम सिर्फ एजुकेशनिस्ट है तो हमें सिर्फ एजुकेशन के लिए रखा जाए ताकि हम जस्टिफाई कर सके इस प्रोफेशन को। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਤਨੇ ਕੇਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। मैम, आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है, आवाज कट रही थी, आप रिपीट करेंगे ਜੀ प्लीज? ਪੂਜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਦੀ। ਟੀਚਰਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ हाँ ਕੇ जी। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। बिल्कुल मैम, मैं एग्री कर रही ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ। ਤੇ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਏ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿਓ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਪਹਿਲੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, रिकॉग्निशन नहीं है। सिर्फ एक दिन टीचर्स लिए एक हॉलो स्लोगन्स देते जाते हैं कि ये हमारे नेशन बिल्डर्स हैं, इनको प्राइज में इनको अवार्ड दिया जाए, टीचर सेलेक्ट किए जाते हैं, अवार्ड दिए जाते हैं। ये सिर्फ एक ही दिन क्यों है? सारा साल क्यों नहीं? क्योंकि हमने तो सारा साल पढ़ाना है ना, सिर्फ एक दिन नहीं पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर्स के प्रोफेशन ले लो, कोई भी प्रोफेशन ले लो, सिर्फ एक दिन रिकॉग्नाइज किया जाए। ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲੈਣੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਟ੍रेंड है कि ਹੁਣ थोड़ा बहुत बदला है? नहीं मैम, अब तो जमीन आसमान का फर्क आ गया है। पहले टीचर्स को कहा जाता था कि एक सिंपल जॉब है, 2 बजे टीचर घर आ जाएगी, चलो फीमेल्स के लिए ये जॉब बड़ी सिक्योर है। लेकिन अब वो चीज नहीं है, क्योंकि जितनी चैलेंजिंग जॉब अभी टीचर्स की हो चुकी है, क्योंकि हमें भी अपने आप को अपडेट करना पड़ता है सिस्टम के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, न्यू पॉलिसीज के साथ, अपनी अपनी स्ट्रेटजीज को बड़ा चेंज करना पड़ता है। तो ये एक सिंपल जॉब नहीं रहेगी, चैलेंजिंग जॉब रह गई। और चैलेंजिंग जॉब के लिए आप सिर्फ ये नहीं है कि 8 to 2 टाइम होता है, हम 24 ऑन कॉल रहते हैं। इवनिंग में हमारी जब पेरेंट्स के साथ हमने कनेक्शन हुए हैं कोरोना में, पेरेंट्स ने रात रात तक हमें कांटेक्ट किया है। तो ये सिर्फ एक सिंपल जॉब नहीं रह गई है, हम 24 आवर्स ऑन टोज रहते हैं। कभी भी कोई भी ड्यूटीज आ जाए हम मना नहीं कर सकते, हम आंसरेबल हो जाते हैं, क्यों नहीं ड्यूटी करनी।
ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੱਧ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਊਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੈਪੀ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आई एम उषा मेहता। टेक्नोलॉजी के साथ आपने बोला कि हम कैसे अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। टाइम टू टाइम जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वो हमें ट्रेनिंग्स दे रहा है, एंड लकीली मैं जो हूँ टेक्नोलॉजी से ट्रेन थी, बिकॉज आई हैड डन डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स। Okay. और बाकी जहां तक इसका सवाल है कि टीचर्स को अपग्रेड अपने आप को करना पड़ेगा ना, जो टीचर्स नहीं कर रहे, क्योंकि जो एनईपी हमारे लिए आगे एजुकेशन सिस्टम लाया है उसके लिए हमें जितने भी हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उनको अडेप्ट करना पड़ेगा। और जब तक टीचर्स ट्रेन नहीं होंगे तब तक हम बच्चों को भी हम कैसे सोच सकते हैं उनकी प्रोग्रेस के लिए। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਉਹਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? See, I'll put myself first because I am a kindergarten teacher. Okay. So ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी के साथ डाउट क्लियरिंग सेशंस नहीं होते। हमने 2 साल ऑनलाइन पढ़ाया है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने तो बहुत अच्छा ग्रास्प किया है, बिकॉज 1-to-1 आपको टीचर के साथ बात करने को मिला। इनफैक्ट जो पेरेंट्स हैं वो भी एजुकेट हुए हैं, the way that teachers are teaching, so parents also got to know. Otherwise in physical classes what used to happen, we used to teach, हमारा कुछ और मेथड होता था और पेरेंट कुछ और कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी के आने से मुझे लगता है कि किंडरगार्टन टीचर्स को तो काफी हेल्प हुई है, क्योंकि जो हम बता रहे हैं वो वहाँ पे उनके पेरेंट्स भी देख रहे हैं, और पेरेंट्स की ही ये फीडबैक है कि उन्होंने भी हमसे बहुत कुछ सीखा है इस दौरान। ਤੇ ਮੈਮ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਅ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰਸ ਐਜ਼ ਪੂਜਾ ਮੈਮ ਸੈਡ? True. Teachers are responsible for the holistic development of the child, and every teacher should be honored every day. एंड जो हमारे इंडिया में जो चल रहा है, जो टीचर्स के हालात हैं, ठीक है, टीचर्स आर द लेसर पेड कम्युनिटी, एंड ड्यूरिंग कोरोना टीचर्स ने जितना सफर किया उतना किसी भी कम्युनिटी ने सफर नहीं किया है, ठीक है। और जो टीचर्स के हालांकि wherever I am working right now, आई एम वर्किंग विद द हीरो पब्लिक स्कूल एज कोऑर्डिनेटर, एंड यहाँ पे जो मेरी मैनेजमेंट है बहुत अच्छी है। लेकिन इससे पहले जो इंडिया की इतनी बड़ी बड़ी मैनेजमेंट्स हैं, ठीक है, एक डीएवी इंस्टीट्यूशन है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वहां पे भी हमें एज टीचर्स सैलरी के लिए हमें बड़ी मुसीबतें आई, ठीक है। हमें जब मर्जी टीचर को कॉल कर दिया जाता था, 1:30 बजे टीचर को मैसेज आ रहा है, रात को 10 बजे आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स डे, जो टीचर्स हैं वो सबसे ज्यादा ऑनर्ड होनी चाहिए, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स का हमारे देश में बहुत बड़ा उनको सम्मान मिलता है, ऐसे टीचर्स को भी मिलना चाहिए। ਪੂਜਾ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ,
ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿटीज नहीं मिल पाती हैं ਉੱਥੇ? मैम देखो, क्योंकि ये जो आपने बताया है, यहाँ पे कुछ कुछ एरियाज हैं जो रिमोट एरियाज होते हैं, सम कहीं पे कुछ बॉर्डर्स एरिया हैं जहाँ पे सारी हम कॉमन चीजें नहीं अवेलेबल करा सकते। दूसरा, फैमिली से दूर रहते हैं ये टीचर्स। और अगर कहे कि सिस्टम को लेके, तो कुछ चीजें जो हमें वहाँ पे बॉर्डर एरिया में पहुंचानी होती हैं वो नहीं पहुंचा पाते हैं। तो ये जो बच्चे हैं या पे जो टीचर यही प्रॉब्लम फेस करते हैं कि टाइम टू टाइम जो उनको चाहिए चीजें वो नहीं अवेलेबल हो पाती है। बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस रह सकती होंगी सिक्योरिटी को लेके या अदरवाइज। तो यही एक मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है। कुछ इन्वायरमेंटल है, कुछ फैमिली, जिस तरह से फीमेल्स के लिए स्पेशली उनको अपनी फैमिली देखनी है, घर देखना है, अगर उनके वहां पे दूर भेज दिया जाता है तो नो डाउट कि जॉब्स के लिए आजकल बहुत जरूरी है कि सबको कहीं पे भी जाना पड़ता है। लेकिन एक रिक्वेस्ट रहती है और एक थोड़ा ये रहता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कि वो भी थोड़ा कोऑपरेट करें, हम भी उनके साथ इतना करते हैं। तो ये रहता है रीजंस के वो चाहते हैं कि हमारे नियर बाय स्टेशन हो ताकि वो दोनों चीजों को बैलेंस रख सकें अपनी फैमिली को। क्योंकि अगर एक फैमिली में से या हम अपने एनवायरमेंट से खुश नहीं होंगे तो हम भी और वो सेक्शन को नहीं हम नहीं होंगे। बिल्कुल। उषा मैम, एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि गवर्नमेंट्स कहती हैं कि असी ਜਿਹੜਾ कोई भी गवर्नमेंट हो कि एजुकेशन ते हेल्थ ते असी फोकस करते हैं, किन्ना कि गवर्नमेंट्स फोकस करती हैं हेल्थ ते एजुकेशन ते? हेल्थ एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन की मैं गल कर रही हूँ। सारी गवर्नमेंट्स ये कहती है कि असी अपना सेहत यानी कि हेल्थ या फिर एजुकेशन ते असी फोकस करना है, लेकिन एजुकेशन के मामले में सरकारां किन्नी की फोकस करदी है? तुहानूं लगदा है कि वो इन्नी की इंपोर्टेंस दिंदी है वो, या फिर वो सिर्फ इलैक्शनस के टाइम ही एक नारा कहिए या उन्हां दा जिहड़ा एक लोकां नूं की वो चाहुंदे हैं कि उन्हां नूं वोट इस करके पई है, इस करके ही कहंदे ने वो? मैम मैं इसके इससे पहले उषा मैम रिप्लाई दे, मैं थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालना चाहती हूँ जी। कि स्कूल्स में जितना कहा जाता था कि हेल्थ इश्यूज होते हैं, हेल्थ एजुकेशन है, हम पढ़ाने में तो ठीक है, प्रैक्टिकली यहाँ पे कितनी सरकारों ने आके विजिट्स दिए कोरोना के टाइम पे कि कितना हाइजीन रखा जा रहा है, कितना सिस्टम को, कितनी हमारी सैनिटेशन को ये ध्यान में रखा जा रहा है। बहुत कम। जैसे हम चंडीगढ़ में हैं, यहाँ पे आके स्कूल्स के किसी ने भी हेल्थ वालों ने आके कभी राउंड्स नहीं लिए, चेक नहीं किया क्या फैसिलिटीज मिलनी चाहिए उनको ड्यूरिंग कोरोना, ये कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। ये सिर्फ पेपर वर्क और सिर्फ बातें हैं जो दी जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीजें नहीं होती। True, I agree with पूजा मैम। I absolutely agree with पूजा मैम, क्योंकि कोरोना के दौरान मैं भी चंडीगढ़ में थी और गवर्नमेंट ने तो एक कुछ भी लागू कर दिया, लेकिन उसको वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं ये देखने के लिए कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आए नहीं है। क्योंकि ये पर्सनली हमारा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, स्कूल्स में आके खाली वो आई वॉश था, खाली ये था कि गवर्नमेंट में ये किया है बाहर से आके, पर अंदर से आके किसी ने भी जांच नहीं, कोई भी जांच पड़ताल नहीं हुई, विच इज रियली बैड। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट गलत है, गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, उसने एक पॉलिसी दे दी, बट आगे जो डिपार्टमेंट है वो उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये इंश्योर गवर्नमेंट को करना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी या प्रशासन की ऐसी गल कर रहे हैं, पेपर वर्क बन के रह जाता है, ये पॉलिसी सिर्फ पेपर पे रह जाती है। मैम किन्ना की तुसी वेट करदे हो हर साल एजुकेशन पॉलिसी दा? हम वेट ऐसा तो नहीं है, देखिए हम जो चीजें पढ़ा रहे हैं हमें लगता है कि हम एक्स्ट्रा उनको जो पढ़ा रहे हैं या फिर जो अपग्रेडेड चीजें हैं वो पढ़ाते हैं। लेकिन ये आफ्टर एजुकेशन पॉलिसीज आज सकती हैं हमारे पास, तो ये जरूरी भी है मैम, क्योंकि कोई भी प्रेग्नेंट रहे सिस्टम तो ये अगर चेंज होके आता है, बट इतना फ्रीक्वेंटली नहीं कि अगर जब तक हम उस चीज को अडेप्ट कर पाते हैं, दे पाते हैं और इमीडिएट इफेक्ट से फिर चेंज हो जाता है, तो वो हमें भी स्ट्रीमलाइन करने में थोड़ा टाइम तो लग जाता है।
ਊਸ਼ਾ So ਮੈਮ it should be ਤੁਹਾਡਾ in ਕੀ some ਟੇਕ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ proper ਲੈ way. ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ हैं कि ਕੀ ਕੁਝ ਚੇਂजेस ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ देखिए ਪਾਲਿਸੀ है। एजुकेशन पॉलिसी जो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो काफी हद तक बहुत अच्छी है। जब मैं छोटे बच्चों के लिए बोलूंगी तो उनके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन क्या वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो रही है? नहीं। नहीं, जो सिस्टम पहले था, हम लोग स्कूल्स में जॉब करते हैं, ये करते हैं, सब कुछ है कि नहीं करना चाहिए, और ये सब डिपेंड करता है क्लासरूम में टीचर के ऊपर भी बहुत कुछ। तो जी। एक्चुअली क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि हम कहते हैं कि हमने बच्चे की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, हमने बच्चे का पूरे जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसका ध्यान रखना है, पर एक्चुअली क्या क्लासरूम में वो हो रहा है? नहीं, सिर्फ पेपर्स में होता है और वो नहीं हो रहा। तो उसको कौन इंश्योर करेगा? वो सिर्फ पेपर्स में जा रहा है, पर आप अगर उस स्कूल के हेड या बाकी लोगों को देखें तो मुझे नहीं लगता कि ये इम्प्लीमेंट हो रही है। और यस, पूजा मैम की इस बात से मैं सहमत हूँ कि जब जो भी लागू की जाती है तो उस टाइम थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो सिस्टम इतनी जल्दी जल्दी अगर पॉलिसीज चेंज करेंगे तो वो टीचर्स और स्कूल सिस्टम के लिए भी वो इतनी जल्दी उसमें चेंजेस लाना संभव नहीं है। पूजा और मैम ये एक लागू करने के लिए विजुअल्स कुछ मैं जी ये भी होता है कि किसी एजुकेशनिस्ट या डिग्निटीज जो हैं उनके साथ कंसल्ट किया जाए, क्योंकि फाइनली तो प्रैक्टिकली जो चीज हम फेस कर रहे हैं हमारे साथ, ये टीचर्स के साथ बैठ के इनकी बोर्ड मीटिंग्स हों जिसमें वो बताएं कि ये इम्प्लीमेंट करना ठीक रहेगा कि नहीं। कुछ ऐसे हमारे सिस्टम में हैं जो एजुकेशन से बिलोंग ही नहीं करते हैं, बट वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, जब उनको एजुकेशन का पता ही नहीं कुछ, तो वो किस तरह से कुछ पॉलिसीज को ढल सकते हैं। बिल्कुल, ये भी एक सवाल खड़ा होता है तो कई बारी लोग सवाल चुकते भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अपने हिसाब नाल ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓਜ਼ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਹੋਰ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਇਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? मैम ये क्वेश्चन मेरे लिए था। ਤੁਹਾਨੂੰ पूछ रही हूँ मैम, उस तो बाद उषा मैम ਨੂੰ भी पूछांगी। मैम वो मैं बिजी थी, बच्चे मुझे विश करने के लिए आए तो मेरा ध्यान उधर हो गया, सॉरी। कोई गल नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर दिंदी हाँ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਬੈੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। मैम ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत भी बुरे हालात में है, उनको सिस्टम में उनको दिया नहीं जा रहा है फैसिलिटीज। बच्चे देखिए सबके लिए सेम है, जो बच्चा वहां पढ़ने आ रहा है उसको वही चीज हमें देनी है जो एक प्राइवेट स्कूल को मिल रही है। बैठना चलो ठीक है, एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि बेंचेस नहीं, लेकिन एक क्लास जरूरी नहीं है कि क्लास का इन्वायरमेंट में हमें 4 वॉल्स के अंदर ही पढ़ाना है, हम बाहर भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन टीचर्स का जरूरी है कि वो अपने आप को अपडेटेड रखें ताकि बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। थोड़ा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जिस तरह टेक्नोलॉजी है, अगर हम बच्चों को सिर्फ ब्लैक बोर्ड में ही पढ़ा के या बता के ही पढ़ा पाए, जैसे साइंस की कुछ चीजें हैं, कुछ टर्म्स हैं जो हम दिखा के ही पढ़ा पाएंगे, तो वो चीजें जो बेसिक नीड्स हैं कम से कम वो तो पूरी कर दी जाए उनकी। ਤੇ ਊਸ਼ਾ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਨੀ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहे हैं तो अगर जो भी चीजें हैं वो तो स्कूल को मिलनी चाहिए, लेकिन जो टीचर्स हैं, टीचर्स तो अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज कुछ भी प्लेफुल मैनर में करा सकते हैं। कभी कभी ये हो सकता है कि टेक्नोलॉजी का भी अभाव हो, पर ये नहीं है कि हम उसके बिना पढ़ा नहीं सकते।
There are so many ways for the teachers to make the lesson interesting. और गवर्नमेंट के बारे में तो मैं क्या बोलूं, जो मिड डे मील्स का जो मैंने देखा है कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं दे रही, कई स्कूल्स में गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड कर भी रही है तो बीच में ऐसे कई लोग भी हैं जो वो बच्चों तक पहुंच नहीं रहे। पहुंचता ही नहीं। बिल्कुल। सो हम हर बार गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते। सो जो सिस्टम है ना, जो सिस्टम में जो करप्शन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂਟਲੀ ਲੋ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, टीचर्स के लिए भी कोई काउंसलर होना चाहिए, क्योंकि आज के उसमें जो टीचर्स हैं दे आर वेरी मच स्ट्रेस्ड। टीचर्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। गवर्नमेंट स्कूल का तो मैं कह नहीं सकती क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट यस प्राइवेट टीचर्स आर लाइक फ्यू प्राइवेट स्कूल टीचर्स आर वेरी मच स्ट्रेस्ड, उनकी पर्सनल लाइफ नहीं रह गई है। बट दैट वे आई एम लकी दैट आई एम विद द हीरो ग्रुप, जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है और हम बहुत अच्छे से लाइक हमारी जो मैनेजमेंट है वो हमें काफी अच्छे से सारे एम्प्लॉइज को ट्रीट कर रही है एंड बहुत हमें खुशी हो रही है यहाँ पे रह के। और आज मेरा यहाँ पे फर्स्ट टीचर्स डे है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। बिल्कुल। पूजा मैम, काउंसलर्स ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ? मैम बहुत जरूरत है, क्योंकि देखो वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव इमोशंस, वी हैव फीलिंग्स, एंड समवेयर अगर वी आर नॉट गेटिंग सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द सिस्टम और आवर फैमिली से, तो वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं हमारी भी तो निकलेगी। बिल्कुल। लेकिन ये नहीं है कि वो फ्रस्ट्रेशन हम बच्चों पे निकालते हैं या इस तरह से, बट वी नीड काउंसलिंग सेशंस आल्सो टू कीप आवरसेल्फ पीसफुल, ताकि हमें भी थोड़ा सा गाइडेंस मिलती रहे। ऐसा नहीं है कि वी आर टीचर्स तो हमें कुछ लर्न नहीं करना है, हम सीख नहीं सकते, हम एक लेवल पे आ गए कि हमें कुछ नीड नहीं है। वी ऑल्सो नीड टू बी अपडेटेड एंड एजुकेटेड, और हमें भी मेडिटेशंस की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत रहती है। ऑल्सो जैसे मैंने बताया वी आर ह्यूमन बीइंग्स। बिल्कुल। ते बहुत बहुत धन्यवाद पूजा मैम, उषा मैम, एंड हैप्पी टीचर्स डे दोबारा तो दोनों ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਪਰਸਨਲੀ, ਆਈ ਐਮ ਹੇਅਰ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ them। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਟੀਚਰਸ ਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਉਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਣੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ याद करो, रिस्पैक्ट करो ते उन्हां दे इस योगदान नूं कदे भी ना भुल्लो, क्योंकि उन्हां ने जो कुछ साडे वास्ते कीता है यही कारण है कि अज असी चंगे जिहड़े इंसान बन पाए हैं। ते हुण तक दे लई इन्ना ही, मैनूं दिओ इजाजत। सत श्री अकाल।